ٹرانسمیشن دیکھ رہے تھے جہاں پر پرائم منسٹر نے یہاں پر لائیو خطاب کی اپنی APML کا افتتاح کیا. شکاگو میں ہم لوگوں سے یہاں پر پوچھیں گے کہ لوگوں کا کیا رجحان ہے. ہمارے یہاں پر سوال یہ ہوگا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب اگر پاکستان جاتے ہیں تو کیا وہ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یا اوور آل لوگوں کا کیا پرسیپشن ہے. I have feeling what he did with Chief Justice, I'm sure they will do same thing with him. They'll do same thing with him. تو کیا وہ پولیٹیکلی واپس دوبارہ پاکستان کے پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں کہ نہیں؟ 50-50. 50-50 بننا چاہیے. بن سکتے ہیں کہ نہیں؟ If he'll try our best. If he'll try his best. میں تو چاہتا ہوں کہ وہ بنے, اور اگر ہم لوگ کوشش کریں تو بن بھی سکتے ہیں. اگر انہوں نے جن 40-60% ووٹس کی بات کی ہے کہ اگر اس میں سے 15-20% وہ اٹریکٹ کر سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہی ہیز اے چانس. اگر اوورسیز پاکستانی جو ہیں ہم لوگ ووٹ دے سکتے ہیں پھر تو بہت چانسز ہیں. ضرور سے مان سکیں گے جی. He's very competent guy, very honest, competent, high integrity. So yes, he represents good values for Pakistan. پاکستان میں اگر ان کا ٹرائل ہوتا ہے تو جو لوگ ان کا ٹرائل کر رہے ہیں ان کو خود بھی فیس کرنا پڑے گا جسٹس. جی بالکل, میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل میں انشاءاللہ ان کو ایک دفعہ پھر بننا چاہیے. انشاءاللہ بن جائیں. جی مان جائیں گے انشاءاللہ. I think he'll be very, very good addition to change the whole political face of that country. بھئی مجھے پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی خوشی ہوئی کہ وہ شکاگو آئے, اور ان کے پولیٹیکل اس میں آنے سے کافی فرق پڑے گا اور کافی اچھے لیڈر بنیں گے. He tried that in 1999 and I'm sure he could do that again even now. If he doesn't have the capability, tell me who else. Pervez Musharraf can be the president of Pakistan. He'd be a great president if he has the blessing of the American government. If he has the blessing of the American government, he can be. ضرور پریزیڈنٹ بننا چاہیے. پاکستان کی ہو پہ پاکستان کی امید ہے, اور ہی بلڈ پاکستان, اور پاکستانی عوام ان کے ساتھ ہے. کہ ہماری خواہش ہے کہ اللہ کرے وہ آ جائیں, کیونکہ سب سے ایماندار صدر اور سب سے ایماندار مملکت کا سربراہ میں نے آج تک جو دیکھا ہے وہ پرویز مشرف کو دیکھا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم بن جائیں, اور خدا کرے کہ ہم لوگوں کو بھی اجازت مل جائے ووٹ دینے کی, تاکہ ہم سب لوگ جو یہاں پر موجود ہیں ان کو ووٹ دیں اور انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ پرویز مشرف صاحب دوبارہ آئیں گے اور پھر پاکستان ترقی کی طرف جائے گا. بالکل صحیح ہے. He should come back. He's an enlightened man. He is intelligent man. اور ان کا ایکسپیرینس ہے ایڈمنسٹریشن میں, ملٹری میں, اور رننگ دا گورنمنٹ. He improved the improvement of Pakistan basic thing, and economic is good. Pakistan respect all over the world is good. یہاں پر آپ سیکیورٹی اہلکار دیکھ رہے ہیں, بہت زیادہ سخت سیکیورٹی میں ان کو لایا گیا تھا. یہاں تک میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اتنی زیادہ سخت سیکیورٹی تھی کہ ایون میڈیا کے لوگوں کو بھی آگے نہیں جانے دیا گیا. میں یہ کہہ سکتا ہوں, جو انہی کے الفاظ دہرا سکتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وقت آئے گا تو میں پاکستان جاؤں گا, اور جب جاؤں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مجھے پوری امید ہے کہ جو عوام فیصلہ کرے گی وہ اسے قبول کریں گے, اور مجھے امید ہے کہ وہ اس میں سکسیسفل ہوگی. تو انہوں نے جو بھی کام کیے بہت آنیسٹلی, بہت ہی ایمانداری کے ساتھ کیے, اور ان کو ہم پوری پبلک مس کرتی ہے. میں تو چاہتی ہوں کہ وہ آئیں. اور کیا آ سکیں گے, پریزیڈنٹ واقعی بن سکیں گے؟ My wishes are with him. I don't know. I hope so. Her wishes are with him. چلیں اللہ کرے آ جائیں, اور ہم لوگ سارے ان کے ساتھ ہیں, اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ. پاکستان کی جو پازیٹیو تھنکنگ ہے وہ میرے خیال میں ہمیں اسی چیز کی آج کل ضرورت ہے, اور انشاءاللہ آنا چاہیے. میرا خیال سے وہ ضرور آئیں گے. جب وہ اپنے دور میں تھے انہوں نے پاکستان کو ایک نئے مقام تک پہنچایا, اور ہم سب کی یہ دعا ہے اور امید ہے کہ دوبارہ سے وہی جوش اور ولولہ ہو, اور ہمارا ملک جو ہے ترقی کی طرف گامزن ہو. یا ضرور, کیونکہ جو ان کے خیالات ہیں اور وہ جو جس طریقے سے پرانی سوالات جو لوگوں کو کوشچن ان کے آنسر دے رہے ہیں, تو لگتا ہے کہ ضرور انشاءاللہ. بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو ہم لوگوں سے پوچھنا چاہیں گے, اور وہ یہ تھا کہ لال مسجد کے بارے میں بھی پرویز مشرف صاحب نے بات کی, اور لال مسجد کے بارے میں مشرف صاحب نے کہا کہ جو کچھ بھی میڈیا نے اور اس طرح کے لوگوں نے, انہوں نے نواز شریف کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا, اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب میں پاکستان جاؤں گا تو میرا ٹرائل کریں گے بگٹی کیس میں اور لال مسجد کیس میں. تو ہم لوگوں سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ لال مسجد کے بارے میں جو انہوں نے وضاحت کی, کیا لوگ اس سے مطمئن ہیں کہ نہیں؟ میں سمجھتا ہوں جو انہوں نے ایکشن لیا تو ٹھیک لیا تھا. اور does he have what it takes to be a president of Pakistan and he can resolve the problem of Pakistan? I think he can resolve the problem. لیکن بیرڈ آدمی ہیں, آرمی کا جنرل ہے, اور ان کو پاکستان کے ویلیو کا پتہ ہے, پاکستان کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے. اور اگر پاکستان جاتے ہیں, جو انہوں نے سائیکل وغیرہ جو کہا ہے وہ بالکل صحیح کہا ہے. They are not working for the country.
They are not working for the country. यहाँ पर सबका ये कहना है कि लूट मार सब हर जगह पर लूट मार है, कोई भी कंट्री के लिए काम नहीं कर रहा। हमारे साथ परवेज मुशर्रफ साहब के बड़े भाई मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं मुशर्रफ साहब पाकिस्तान जाएंगे और आप क्या समझते हैं मुशर्रफ साहब दोबारा पाकिस्तान की सदारत संभाल सकेंगे कि नहीं? ये तो इसका फैसला तो पाकिस्तानी अवाम करेगी, हम नहीं कर सकते। अब जब कभी इलेक्शन होंगे जाहिर है अवाम ही चुनेगी। तो अगर इलेक्शन साफ और शफाफ होती है तो क्या परवेज मुशर्रफ दोबारा गवर्नमेंट में आ सकेंगे, दोबारा सदर बन सकेंगे पाकिस्तान के? वो तो मुनसर इस बात के वो जाकर किस तरह अपनी पार्टी को चलाते हैं, अवाम में मकबूलियत हासिल करते हैं। अगर अवाम में मकबूलियत हासिल कर लें तो यकीन वो सदर मुंतखब हो सकते। तो आप क्या समझते हैं परवेज मुशर्रफ साहब के इस वक्त क्या वो वक्त आ चुका है कि इनको पाकिस्तान अब चले जाना चाहिए या अभी वो वक्त नहीं है कि पाकिस्तान जाना चाहिए? फिलहाल मेरे ख्याल में हालात ऐसे नहीं है, कुछ सेटल हो जाए मामला सिक्योरिटी के लिहाज से, फिर जब कभी इलेक्शंस का वक्त आएगा 2013 में, जब कभी हो सकता है उससे पहले भी हो जाए, तो इलेक्शन का जो टाइमिंग है उस लिहाज से उन्हें। तो यहाँ पर जो इनको सिक्योरिटी फराहम की गई वो कौन फराहम कर रहा था और यहाँ पर भी बहुत सख्त सिक्योरिटी थी, क्या अभी भी कोई थ्रेट मौजूद है यहाँ पर? नहीं, यहाँ तो नहीं, अमेरिका में तो कोई थ्रेट नहीं। लेकिन दूसरा सवाल मेरा यहाँ पर ये था कि जब वो मूव अराउंड करते हैं इवन विद इन यूएस, तो क्या उनके साथ सिक्योरिटी मौजूद होती है या नहीं? बस एक आध लोग होते हैं जो आर्मी की तरफ से उनके साथ हैं, बस उस हद तक। जी बिल्कुल बन सकते हैं इंशाल्लाह और बनेंगे। उन्होंने मीडिया को आज़ाद किया, एजुकेशन को सही किया और उस भुगती को भुगता, क्योंकि भुगती को भुगता भी वो उनके मुताबिक ये 3 कामों में से एक अच्छा काम था कि भुगती को भी भुगता। I throw myself in से वो 10 अरब कर दे, मैं परवेज मुशर्रफ को उधर लेके आऊंगा, 10 अरब से 5, 7, 8 जो गांव बन जाएंगे। We will do it. I'll bring Pervez Musharraf. I'll throw myself inside too. लेकिन condition ये है कि we got the right to defend Bukti. If we come there and you are there, so we'll see who survive. But 20 अरब रुपया जो डाल दो बैंकों में, अवयान टीवी को डाल दो और हम उधर आके सारे गांव बनाएंगे और आपको परवेज मुशर्रफ लेके देंगे। मेरे सर के ऊपर भी 10 अरब लगा दो, उसको भी लगा दो, 20 अरब कर दो, we will accommodate you. Okay? थैंक यू। यहाँ पर मैं बात बताना बहुत ज्यादा जरूरी समझूंगा कि जो मुशर्रफ साहब को सवालात दिए गए, उन्होंने सिर्फ उन सवालात का जवाब दिया जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे। ये तो जो है ना, ये तो हालात के ऊपर मुनसर होगा। वैसे जो पाकिस्तान से बाहर सियासतदान आए थे बहुत कम जाते हैं और जो जाते हैं उनका हालात अच्छे नहीं होते। दूसरा सवाल ये कि लाल मस्जिद के बारे में जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी, क्या आप उससे मुतमईन हैं? ये उनके ख्यालात हैं, मैं इस बारे में कोई राय नहीं दूंगा। इन्होंने कहा ये राय देने से इस्तेनाब करेंगे, हम यहाँ पर एक और अखबार के ब्यूरो चीफ से बात करेंगे। हमारी राय पोलराइज्ड है, आप हमारी राय नहीं लें, आप अवाम की राय लें। लेकिन आप क्या समझते हैं, आप लाल मस्जिद से आप मुतमईन है कि नहीं उनके बयान से? नहीं, उन्होंने झूठ बोला है। उन्होंने झूठ बोला है, उन्होंने झूठ बोला है लाल मस्जिद के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक बात की गई है कि उन्होंने झूठ बोला। हम यहाँ से पूछेंगे परवेज मुशर्रफ साहब, will he be a president of Pakistan again? Yeah. Does he have what it takes to resolve the issues Pakistan is facing right now? Yeah. So if you vote, would you vote परवेज मुशर्रफ? Yeah. आप मुशर्रफ साहब को वोट देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। मुशर्रफ साहब को आप वोट देंगे? हाँ, क्यों नहीं देंगे? क्यों देंगे? इसलिए देंगे कि हमने और लोगों को ट्राई कर लिया है। जी सर, बन सकेंगे बिल्कुल बन सकेंगे सर, बिल्कुल बन सकेंगे। बनेंगे जी? नहीं सर, नहीं बन सकते। नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? वो जो आदमी 9 साल हुकूमत करके आर्मी का भी चीफ और प्रेसिडेंट भी रहा, वो 9 साल में इतना पावर नहीं वो कर सके जितना वो तो वो जब सिविल गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे तो वो कैसे कर सकेंगे? ये पहले मुझे बताएं कि ये बुक्टी ने जो 1 बिलियन रुपीज जो लगाए, सॉरी, ये कॉमन citizen can go and bounty somebody else, another citizen, isn't that illegal? प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब का जो रिकॉर्ड है वो पूरी दुनिया में नॉन है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है और हमारी दुआ है अगर उनके इरादे नेक हैं और ख्वाहिशात नेक हैं तो अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे। अगर उनके इरादे नेक है और ख्वाहिशात नेक है तो अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे। हमारे यहाँ पर एमक्यूएम के कोऑर्डिनेटर जो शिकागो के वो यहाँ में मौजूद हैं, जुनैद फहमी साहब एमक्यूएम के, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि वो इसके बारे में क्या समझते हैं। परवेज मुशर्रफ साहब वोट लेकर आ जाते हैं दोबारा, तो क्या आपकी पार्टी परवेज मुशर्रफ साहब के साथ इल्हाक करने के लिए तैयार है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये हमारे पॉलिसी डिसीजंस हैं जो कि हमारी राब्ता कमेटी इस चीज़ को कंट्रोल करती है, मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ। हम हर जमहूरी हुकूमत के साथ हमने हमेशा अलायंस किया है, जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, तो यकीनन अगर कोई मुल्क और कौम की खिदमत के लिए आगे बढ़ेगा तो व्हाई नॉट, वी शैल सपोर्ट हिम। एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे हमारे पास मौजूद है मुजाहिद गाजी साहब। मुजाहिद गाजी साहब से हम पूछेंगे, मुजाहिद गाजी साहब
मुजाहिद गाजी खुद किसी से पूछ रहा, मैं मेरे साथ आया टीवी के अली मौजूद है, अली से मैं पूछूंगा। पहले आप पहले मैं आया था। अच्छा इनसे ले लूं सबसे पहले, चले सबसे पहले आप मुझे ये बता दें कि परवेज मुशर्रफ साहब वाकई पाकिस्तान जाएंगे, और अगर जाएंगे तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान ही कैन बी प्रेसिडेंट अगेन? बखुदा मुझसे उन्होंने नहीं पूछा, वो अगर मुझसे पूछते तो मैं उन्हें मशवरा देता कि जो भी पार्टी भी अगर शुरू करनी थी ना तो पाकिस्तान में शुरू करनी थी। मैंने एक सवाल भेजा था, इसलिए कि मुशर्रफ साहब जब पिछली तकरीरों में हमेशा कहते रहे कि पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान की सियासी पार्टियों को हंगामा नहीं मचाना चाहिए, डिवीजन नहीं होनी चाहिए पाकिस्तानियों में, और पाकिस्तान से बाहर सिर्फ पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। लेकिन आयरनी ये है कि उन्होंने अपनी पार्टी की इब्तिदा बैरून मुल्क शुरू की है और अब तक बाहर ही वो इसकी मीटिंग्स कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो अवामी लीडर होते हैं उनको अवामी रहना चाहिए। आज मुझे थोड़ा सा ये महसूस हुआ कि गो के बातें उन्होंने सारी अवामी की हैं, लेकिन जो यहाँ पे सिक्योरिटी का इंतज़ाम था वो थोड़ा सा गैर अवामी था, और ख़ासतौर पर मीडिया को, जो मीडिया के साथ कोई उनकी अलग से कोई मीटिंग नहीं करवाई गई, उन्हें सवाल नहीं करने दिया गया, वो आए और आके फिर पीछे से चले गए। मैं समझता हूँ कि किसी भी सियासी जमात के लिए और सियासी लीडर के लिए ज़रूरी है कि वो किसी हद तक वो रिस्क ले जो लेने ज़रूरी होते हैं लोगों से मिलने के लिए, उनको अपने से करीब लाने। बिल्कुल बन सकते हैं। ये याद रखें कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बनने के लिए पाकिस्तानी अवाम की सिर्फ एक एलिमेंट नहीं है। दुनिया में, अमेरिका में जब आप इल्ज़ाम देते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल देते हैं, तो जो मुशर्रफ साहब का मेरे ख्याल में यहाँ पे ऐलान करना, पार्टी बनाना, इस बात का पेश ख़ैमा है कि आइंदा प्रेसिडेंट वही होंगे। Can he be a president of Pakistan again? I absolutely think he can be the president. Whether he should be or is a different question. लेकिन I think he can be because he is supported by America. इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं, ढकी हुई बात नहीं है। America wants him there, so the possibility of that happening is great. और वहाँ पे जाके अगर फिलहाल जो हालात हैं उससे अगर बेहतर हो सकते हैं तो I would support anybody who can bring the country out of the current state. जाहिर सी बात है कि this is a public relations event. He's re-announcing the All Pakistan Muslim League. American Pakistan Muslim League. यही होना चाहिए था नाम। हार्ट wrenching सवाल थे वो नहीं उन्हें पूछे, लेकिन I think that was expected today. That was expected today. हमारे साथ हमारे और एक फौज के स्क्वाड्रन लीडर साहब शायद देख भी मौजूद हैं, हम इनसे भी पूछेंगे, इनके तासुरात भी लेंगे, जो कि इनका भी ताल्लुक मीडिया से है, लेकिन हम इनसे पूछेंगे कि परवेज मुशर्रफ साहब अगर पाकिस्तान जाते हैं, he can be a president again or no? Right now it's all dark, but still I believe in seeing light across the tunnel, and that's what I look today even. So whether Musharraf can be a president or not, it all depends how the Pakistanis are going to look them. But before that, I think we have to change the perceptions of the Pakistanis. We should have to stop blaming others. We have to look into ourselves. If we are good, then we will get the good leaders. Allah Ta'ala ने भी कहा है, जैसी कौम होती है उस पे वैसे ही हुक्मरान भेजे जाते हैं. That's my final comment. लेकिन जिन्होंने कहा कि जिस तरह की कौम होती है उस तरह का लीडर भेजे जाते हैं यहाँ पर. He does because हमारी कौम ऐसी है कि जब भी इलेक्ट करती है तो ऐसे लोगों को इलेक्ट करती है, जो एक बंदा रह गया उसको मौका दे दो, देखी जाएगी. साहब झूठ बोल रहे थे अपनी तरफ से, जो भी उन्होंने PR के लिए, जो प्रोपेगेंडा के लिए जो कहानी बनाई हुई थी, वही सारी आगे पीछे इधर भी बोली है. आप इनके पहले 9 साल के टेन्योर से मुतमईन हैं? नहीं. इंशाल्लाह आएंगे. What does he have to be a president? He has a lot of truth in him. So, and he's a really honest person. So I believe that he will be the next president. We've seen him before. We know he's a person of his word, and we're looking forward to him back into power. It's not an impossibility at all. हमारी तमाम तर दुआएं परवेज मुशर्रफ साहब के साथ हैं कि अगर अवाम उनको वोट देकर आगे लेकर आना चाहते हैं तो किसी भी पाकिस्तानी को, अगर वो जमहूरी तरीके से आगे आना चाहते हैं तो जरूर आए. लेकिन उस जमहूरी तरीके से आने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो जिस तरह उन्होंने 2 बार कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा, 2 बार कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़कर 9 साल तक पाकिस्तान पर हुकूमत की, पाकिस्तान के लोगों को अमेरिका के हाथों बेचा, पाकिस्तान को एक स्टेट ऐसा बना दिया कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी है, जिसको दहशतगर्दी का मुकाबला भी करते हैं. हमने अपने ही लोगों को मरवाया. लाल मस्जिद अभी तक एक सवालिया निशान है, बुकटी का कत्ल एक सवालिया निशान है. बहुत सी ऐसी चीजें हैं परवेज मुशर्रफ की जो अभी तक एक सवालिया निशान है. अगर परवेज मुशर्रफ साहब जिस तरह के समझते हैं कि वो दोबारा आएंगे और पाकिस्तानी अवाम उनके साथ है, तो उनको हमारा मशवरा ये होगा कि पाकिस्तान जाएं और पाकिस्तान जाकर बाकायदा तौर पर अपनी पार्टी का आगाज करें. फहद बेग के साथ अली हसनैन मलिक, अयान TV शिकागो.